Students, as you know that COVID-19 is back. You are staying at your home, following the rules and regulations of the COVID-19 protocols. But students, this is the one kind of opportunity which brings you to use this valuable time. If you use this valuable time, definitely it will fruitful for you. So students, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you the best of best information about Python programming. And right now we are running here chapter number 11, list manipulation. And the topic is list function and methods part 3. In this, you are having few commands related to list functions as well as one more topic I have added here, that is your nested list. I will give you the practical demonstration of the same, but students, you have to watch this video very carefully. If you feel that you have any kind of query, definitely you can contact with me. So students, what are you waiting for? Please come to my laptop screen so that I can give you the practical demonstration of the same. Please come. Okay students, now I am going to start the class. As you know that we are running here the chapter list manipulation. And in the list manipulation, we have understood about these functions: insert, pop, remove function, clear function, count function, and reverse function. So you will have these functions in the previous video, and I hope you are able to understand all these things. Okay, so now in the list function, total videos are made here for two videos here, and this is the third part of the video. In this part, we are going to have only 3 functions, okay, and one new topic also. The 3 functions we are going to have: number 1 short, number 2 shorted, and number 3 min, max, and sum function. These 3 functions we are going to study here. Okay, so let's start. The first thing is short method. Okay, तो short method है क्या? Short method एक ऐसा method है जिसमें कि आप अपने लिस्ट ऑफ आइटम्स को आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में आपको करके देगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहें तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं. सो दिस इज योर पाइथन स्क्रीन, एंड इन दिस पाइथन स्क्रीन वी आर गोइंग टू हैव द लिस्ट हियर. सपोज आई हैव टेकन द T1. This is the list name, and then I'm going to have here first one is that's E, and then I will take one A, then I will take here T, then I will take here R, then G, bracket close. So this is the list, and now I want to sort this list. तो शॉर्ट करने के लिए एक सिंटेक्स होता है, एक प्रॉपर वे होता है. पहले हम उसको समझ लेते हैं. इस सिंटेक्स में अगर आपने शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट जो फंक्शन है उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका यहाँ पर शॉर्ट होकर के आपको मिल जाएगा. कैसे करेंगे, मैंने लिखा T1 डॉट SORT शॉर्ट, और यहाँ मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया. ठीक है, ये देखिए आपका. अब यहाँ पर मैं T1 लिखूंगा तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से अरेंज होकर आपको मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वन काइंड ऑफ इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू शॉर्ट योर मेथड्स, हाउ टू शॉर्ट योर मेथड. ठीक है, हाउ टू शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. अब हम अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, यहाँ पर T1 डॉट SORT शॉर्ट. अब आपको यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा. अब इस आर्गुमेंट में हमें लिखना होगा यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू ट्रू. तो अब आपको यहाँ लिखना होगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. ऐसा करने से मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है,
इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर रिवर्स इसको फॉल्स है, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स है यहाँ पर, इसलिए आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब आपका ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ T1, ये देखिए TRGEA, ये देखो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये। सो स्टूडेंट्स, आई होप इज इट वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो आपका यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग में किस तरीके से करेंगे ये आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ में करके दिखा दूँ जो ऑलरेडी अभी अभी डिस्कस हुआ है। मैंने यहाँ लिखा T1 के बाद मैंने लिखा रिवर्स, T1 के बाद मैंने यहाँ लिखा शॉर्ट के बाद मैंने यहाँ लिखा रिवर्स इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए सक्सेसफुली आपका रन हो गया। अब ये देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ये कि अगर हम कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो इस समय आपका जो रिवर्स इक्वल टू फॉल्स है, ये देखिए दोनों एक जैसे रिजल्ट आपके आए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू फंक्शन। द नेम ऑफ द न्यू फंक्शन इज शॉर्टेड, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्टेड में और शॉर्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव द डेफिनेशन। पहले एक बार डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। सो शॉर्टेड का मतलब होता है इट टेक्स द नेम ऑफ द लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू शॉर्टेड लिस्ट विथ शॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर एक लिस्ट पहले आप यहाँ पर उसको देंगे, जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर शॉर्ट करके मिलेगी, और यहाँ पर जो अंतर है वो मेन अंतर ये है कि यहाँ पर एक न्यू लिस्ट क्रिएट होती है, पुरानी वाली वैनिश हो जाएगी। पुरानी वाली क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए तो वो आपको न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं करती है, केवल न्यू लिस्ट आपकी शॉर्टेड जो हमारा फंक्शन है वो हमारा यूज़ करके आप उसको न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ। तो अब आपको हम करें कैसे यहाँ पर, इसमें आपको क्या करना होगा, दो आर्गुमेंट्स आपको पास करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट में आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा वेल इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर एक लिस्ट बनाया, इस लिस्ट में कुछ नंबर्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 17, 24, 15, 30, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट बना दी यहाँ पर। अब इस लिस्ट का जो इस्तेमाल है हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपने शॉर्टेड फंक्शन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। एक लिस्ट हमने बना दी है यहाँ पर, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमें जो यूज़ करना है शॉर्टेड फंक्शन को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा VAL डॉट SORT शॉर्टेड ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, एक आपको लिखना है इटरेटिव जो सीक्वेंस है वो लिखना है, और आपको यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग में चाहिए वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे वेल डॉट शॉर्टेड करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, करना ये है आपको कि यहाँ पर सपोज करिए मैंने एक मैंने वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने इस तरीके से लिखा शॉर्टेड। अभी तक तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे थे, आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप इसको शॉर्ट कर रहे थे आप, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस वाले फंक्शन को यूज़ करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है, आप इस तरीके से यूज़ करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे आप अपने लिस्ट को, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर तरीके से रन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एल करूँ तो ये आपका यहाँ पर शॉर्टेड लिस्ट आपको मिल गया है 15, 17, 24 और 30। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आपका हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गया, और अगर हम इसको न्यू तरीके से यूज़ करना चाहें तो क्या होगा, चलिए एक और तरीका है यूज़ करने का, उसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा L इक्वल टू शॉर्टेड, फिर मैंने यहाँ लगाया ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करिए आप, जो भी वैल्यूज़ को आप पास करना चाहते हैं,
ठीक है, और इसको हम चेक करेंगे कि क्या इस तरीके से रन होगा या नहीं होगा। ये देखिए एरर आ गया ये, ठीक है, यहाँ पर ये एरर आ गया। तो इस तरीके से मत यूज़ करिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ हाँ, लेकिन अगर आप लिस्ट के फॉर्म में करेंगे तो मे बी ये आपका रन हो जाएगा। ये इसको अगर आप लिस्ट की तरह यूज़ करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम कि क्या ये आपका यूज़ होगा इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वट एवर द थिंग्स आई एम डिलीवरिंग हियर, ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, वापस आते हैं अपने कमांड्स की तरफ। ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है। अब इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, एक मैंने वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल के लेने के बाद मैंने लिखा शॉर्टेड। शॉर्टेड के बाद मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया और अब यहाँ पर हम लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे हम। अब हम चेक कर लेते हैं क्या लिस्ट के फॉर्म में इसको मेंशन करने के बाद ये कंसीडर होता है या नहीं होता है। ओके, तो ये आपका यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा, देखिए सक्सेसफुली आपका रन हो गया। यानी कि अगर हम केवल यहाँ पर नंबर्स के फॉर्म में देते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ये, ठीक है। एंड आई थिंक इट विल बी गिवन इन टपल फॉर्म, इट विल बी एक्सेप्टेड हियर। चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर val val 1, ठीक है। तो ये आपका देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखें यहाँ पर val 1 इक्वल टू शॉर्टेड, शॉर्टेड के बाद यहाँ पर, और इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं टपल को। इस बार इसके अंदर हम मेंशन करेंगे टपल को 17, 24, 15 और 30। अब चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा ये। और यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए, तो टपल को यूज़ भी हम कर सकते हैं लेकिन नंबर की फॉर्म में यूज़ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था पहले मैंने आपको। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ इट्स टाइम टू लर्न हाउ द शॉर्टेड फंक्शन इज यूज फॉर हैविंग द डिसेंडिंग ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक आर्गुमेंट और पास करना होगा शॉर्टेड फंक्शन के अंदर। मैंने लिखा val 1, फिर इसके बाद शॉर्टेड। अब इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट पास करने हैं अब, ठीक है। एक मैंने पास कर दिया val, जो कि ऑलरेडी एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को जब हम यूज़ करेंगे हम, तो लिस्ट को यूज़ करने के लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए इसलिए। इंटर प्रेस करें, सक्सेसफुली आपका रन हो गया है। और हम लिखेंगे val 1, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आ गया। तो ओवरऑल हमने देखा गया है यहाँ पर कि शॉर्ट और शॉर्टेड में दोनों में अंतर है। यहाँ पर आपका जितने भी काम कर रहे हैं, न्यू लिस्ट आपकी बनती जा रही है, पुरानी लिस्ट आपकी वैनिश होती जा रही है, ठीक है। और आपकी जो पुरानी जो शॉर्ट फंक्शन थी उससे न्यू लिस्ट हमारी नहीं बनती। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार हम इसके जो फंक्शंस हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंसेस तैयार किए हैं आपके लिए। सो दिस इज द डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट, it does not create any new list as it sort the element in the same list, ठीक है। कोई भी न्यू लिस्ट नहीं बनती शॉर्ट फंक्शन अगर आप यूज़ करते हैं आप, लेकिन अगर आप शॉर्टेड फंक्शन यूज़ करेंगे तब क्या होगा, इट क्रिएट अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग द शॉर्ट वर्जन, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। इट वर्क ऑन द लिस्ट एंड मॉडिफाइज, ठीक है। क्या करेगा ये, वो लिस्ट के ऊपर ही काम करेगा और उसको मॉडिफाई भी करता रहेगा, डिपेंड करता है कि यूज़ कैसे करेंगे आप। पॉइंट नंबर 2 में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 सेज दैट इट कैन टेक एनी इटरेबल सीक्वेंस। इटरेबल सीक्वेंस मतलब ये बात कर रहा है आपका लिस्ट की, टपल की, स्ट्रिंग की, इन सब की बात कर रहा है, ठीक है। इट कैन टेक यानी कि यहाँ पर केवल लिस्ट टाइप होना चाहिए, यहाँ पर इटरेबल टाइप हो सकता है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिटर्न ए शॉर्टेड लिस्ट, हमेशा यहाँ शॉर्टेड लिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट आपको एक्सेप्ट की जाएगी, यहाँ पर लिस्ट के अलावा अगर आप टपल देते हैं वो भी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। थर्ड वन, इफ़ यू वांट टू शॉर्ट अ लिस्ट विथ द शॉर्टेड ऑफ ओरिजिनल वन देन यूज शॉर्ट फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हैं कि जो ओरिजिनल है वो आपका शॉर्ट होता रहे,
ठीक है, कि जो भी चेंजेस है ओरिजिनल में ही चेंजेस हों, तो आप यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करिए। लेकिन आप चाहते हैं कि जो ओरिजिनल है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, नई लिस्ट आपकी बनती रहे, तो अब आप यहाँ पर शॉर्टर फंक्शन का ही यूज़ करेंगे आप। तो टोटल आपके ये हो गए डिफरेंसेस हो गए ये। नाउ स्टूडेंट्स, let me close this, and now we are coming to the Python screen here. Now students, it's time to move the last command of the list function, and this function name is minimum, maximum and sum. ठीक है, minimum, maximum and sum, इस फंक्शन को अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं बहुत ही आसान फंक्शन है। इस फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम चीज़ें या किसी भी चीज़ का सम भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो कैसे हम यूज़ करेंगे इसको हम चेक कर लेते हैं। एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं हम। सपोज़ करिए मैंने एक लिस्ट लिया, मैंने लिखा 11, 22, 33, 44, 55 एंड क्लोज। ये हमारी एक लिस्ट बन गई है। अब मुझे ऑलरेडी ये पता है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में है ये, तो इनकेस एक काम करता हूँ, मैं इसको अनसॉर्टेड कर देता हूँ। पहले मैं थोड़ा एक जिगजैग फॉर्म में ले लेता हूँ। 22 के बाद 11, 55, 10, 4, 99 क्लोज। ये मैंने एक न्यू लिस्ट बना दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, एक न्यू लिस्ट। अब न्यू लिस्ट बनने के बाद मुझे पता करना है मिनिमम क्या है, तो मैंने लिखा मिन के बाद मैंने एल पास कर दिया। यहाँ पर मिन के बाद मैंने क्या पास कर दिया, एल। मिनिमम देखिए आपका आ गया 4। मुझे पता करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया, बस आपको मैक्स फंक्शन यूज़ किया, 99 हो गया। मुझे सबको जोड़ना है, मुझे क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो जितने एलिमेंट्स हैं सबको जोड़ने के लिए अब आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। ये देखिए टोटल सम आएगा 201 आएगा ये। ठीक है, तो अब आपने यहाँ सीखा गया यहाँ पर द लिस्ट फंक्शन मस्ट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेम टाइम। अगर सेम टाइम है तभी आपका मिनिमम मैक्सिमम सम आपका पता चल पाएगा। अगर आपका सेम टाइम का नहीं है तो आपका ये नहीं पता चल पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा L इक्वल टू ब्रैकेट लिया 22, 11, फिर मैंने ले लिया यहाँ पर A या D ले लेता हूँ मैं, फिर इसके बाद मैंने बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मिनिमम निकालना है। तो मुझे अगर मिनिमम निकालना है तो मैं अगर सेम प्रोसेस को दोबारा यूज़ करूँ, अगर मैं सेम प्रोसेस को अगर दोबारा यूज़ करूँ तो ये देखिए आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है, आप मिनिमम मैक्सिमम सम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे आप। तो इस चीज़ को याद रहे आप कि आप यहाँ पर सेम टाइप के नंबर्स होंगे तभी आप मिनिमम मैक्सिमम सम को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you able to understand what I'm trying to deliver here. Now students, it's time to take a new topic here, and the name of the new topic is nested list. So nested list को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रैप अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। टोटल हमने क्या क्या पढ़ा, हमने टोटल जो हमारे तीनों वीडियो हैं उन तीनों वीडियो को मिला के टोटल हमने कितने फंक्शंस को पढ़ लिया हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था लेन फंक्शन को। लेन फंक्शन के बाद लिस्ट फंक्शन के बाद अब आपने जो समझा था वो था इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आपने समझा अपेंड। अपेंड के बाद आपने समझा आपने एक्सटेंड को भी। एक्सटेंड के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझा। फिर आपने एक्सटेंड के बाद आपने समझा इंसर्ट को। इंसर्ट के बाद आपने समझा पॉप मेथड को भी समझा। पॉप मेथड के बाद फिर आपने जो समझा वो है आपका रिमूव को समझा। रिमूव के बाद क्लियर के बाद काउंट। क्लियर के बाद आपने समझा यहाँ पर काउंट के बाद आपने समझा यहाँ पर रिवर्स। ठीक है, आपने समझा रिवर्स।
ठीक है। रिवर्स के बाद अब आपने यहाँ पे जो चीज़ों को समझा इस वीडियो में भी, वो है आपका शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट को समझा, फिर आपने समझा शॉर्टेड, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझा आपने। फिर सबसे लास्ट में आपने समझा मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, और एक और आपने समझा वो है आपका सम। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ यू हैव एबल टू अंडरस्टैंड दीज 14 functions here. Okay, now students, it's time to come for the new topic, and the new topic name is nested list. Our new topic is nested list. अब हम जो समझने वाले हैं वो हमारा है nested list हमारा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेस्टेड लिस्ट में सबसे पहले जो हमें समझना है नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बार करके दिखाया था मैंने आपको कि जब हम नेस्टेड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम नेस्टेड का मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है अपने अपने वीडियो में भी, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल हम समझेंगे इसका, ठीक है। सपोज करिए मैंने एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट किया और लिस्ट का नाम रखा मैंने LA, ठीक है, ये हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो गया। फिर मैंने लिखा LB, और इस लिस्ट में हमने लिखा दिया यहाँ पे 33, ठीक है। फिर इसके बाद एक और हमने लिस्ट क्रिएट किया। अब इस लिस्ट में हमने लिख दिया 11 के बाद 44 के बाद मैंने लिख दिया LB, ठीक है। LB का मतलब क्या हो गया 33 एंड 11, देखिए सक्सेसफुली आपका रन हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर LC के कंटेंट्स देखूँ तो LC के कंटेंट्स आपको दिख जाएंगे, नेस्टेड आपका है ये, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और क्रिएट कर लिया है LX। अब इस LX में क्या क्या है 11, LA, फिर इसके बाद LC, फिर इसके बाद एक मैंने ले लिया यहाँ पर लास्ट में 15, ठीक है। अब अगर मैं LX के कंटेंट देखूंगा तो LX के कंटेंट ये हो गए आपके। नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दीज फंक्शंस, अगर मैं पता करूं कि जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं LX में, तो लेंथ में इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आप टोटल आपको दिखाई देंगे 4, ठीक है। कैसे, एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको मैं, एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने जो लिखा है यहाँ पर उस चीज़ को बता देता हूँ मैं। LX स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है। मैं पहले 0 नहीं 1 का देख लेता हूँ कंटेंट क्या है, 22 और 11 दोनों एक साथ, यानी कि जो नेस्टेड लिस्ट में जितने एलिमेंट्स वो एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट होंगे, यहाँ पर एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे काउंट होंगे। इसी तरह से मुझे अगर LX के बाद मुझे पता करना है थर्ड एलिमेंट का, तो ये देखिए 11, 44 और ये आपका हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी के साथ साथ मैं और भी एलिमेंट्स को यहाँ पर मैं चेक करता जाऊँ तो वो प्रॉपर तरीके से मैं देख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ रहे हैं आप कि जिस तरीके से हम अपने कमांड्स को यूज़ करेंगे उसी तरीके से वो आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस चीज़ को कॉपी कर लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इन सब कमांड्स को हमने यूज़ किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्लोज़ करते हैं और दोबारा से ओपन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्यों कहा गया, और इसके जो हम अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 2D लिस्ट की, तो 2D लिस्ट भी कैसे आएगा और क्यों यूज़ करेंगे हम आने वाले समय में, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं एक बार फिर से मुझे लिस्ट क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ LA, ये हो गया LA, फिर इसके बाद LB,
फिर इसके बाद LC, फिर इसके बाद LX, ठीक है। टोटल यहाँ पर 4 अलग अलग लिस्ट आपकी क्रिएट हुई है। अब हमें क्या समझना है यहाँ पर, हमें ये समझना है कि यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट का जो मतलब है वो क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। अब हमें बस एक ही चीज़ समझना है यहाँ पर कि जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कैसे काउंट होंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कैसे काउंट होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर मैंने लिखा है LX2 या LX1, तो उसमें आपको एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे उनके भी एलिमेंट्स पता करने हैं तो कैसे पता करूँ मैं, जैसे मैंने लिखा है LX के बाद मैंने लिखा यहाँ पर 2, तो LX2 का मतलब हुआ 11, 44, 33 और 1। अब मुझे पता करना है कि LX2 के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी पता करना है, मुझे देखना है। तो मैं क्या करूँगा, LX, देन आफ्टर you can write here the list name. Now this is the one kind of nested list. Now you have to use one more square bracket here, and if you write here 0, then you are able to find out the name of the nested list or contents of the nested list. ठीक है। अगर मुझे पता करना है इस तरीके से, तो सेकेंड लिस्ट में रह करके अगर मुझे पता करना है फर्स्ट वाले को, तो मैं फर्स्ट वाले को पता कर लूँगा मैं। इसी तरह से मुझे अगर पता करना है सेकंड में रह करके थर्ड वाले एलिमेंट्स को, तो मैं थर्ड वाले को भी पता कर सकता हूँ। नाउ अगर मुझे पता करना है कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो एक और नेस्टेड है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखा। और मुझे इसी का पहला एलिमेंट मुझे जानना है, ठीक है। पहला एलिमेंट तो ये आपका क्या 33। तो देखिए आपका 2D 3D लिस्ट आपका बनता जा रहा है, यहाँ 2D 3D लिस्ट आपका बनता जा रहा है ये, ठीक है। LX, फिर इसके बाद मैं लिखा 2, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1, ये देखिए एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक तरह की हायरार्की बन रही है, यहाँ पर एक तरह की हायरार्की बन रही है। तो मैं इसको एक फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए आपका फिगर, जैसे मैंने लिखा है LX1, मतलब आप LX के जो पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसका जो पहला एलिमेंट है वो है 22, ठीक है। इसका जो पहला एलिमेंट है वो है आपका 22, ये देखिए 22 है आपका जो 0th पोजीशन पे है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा जो एलिमेंट है 11 है आपका, इसको के लिए आपको LX11 आपको लिखना होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। थर्ड एलिमेंट में 1 2 3 टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल के 3 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको 11 आपको चाहिए तो इसके लिए लिखना होगा 2 0 लिखना होगा आपको। फिर इसके बाद अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट जानना है आपको इस लिस्ट में, तो लिखना होगा 2 1 लिखना होगा। फिर आपको थर्ड एलिमेंट जानना है आपको 2 2 लिखना होगा। फिर इसके भी एलिमेंट्स जानना है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 3D लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी इस तरीके से, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, now it's time to finish off this video and I hope you have understand each and everything. Students, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे से कम्युनिकेट करके हर तरह का सोल्यूशन आप पाएँ आप। So students, now it's time to finish up this video and we'll meet in next video. Okay? So students, I hope you have liked this video and you have entertained also, and I feel there is no doubt with this, but still some issue can be persisted, so you can just give me a WhatsApp. Okay, now one more thing, if you feel the video is fruitful for you, you can just like this video, and if you press the bell icon in this, you will have the updated notification for my latest videos. So now students, it's time to say thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos for the previous topics, and I am always online with you to help you a lot. Thank you so much for watching.